A very good morning, everyone. So, welcome back to our YouTube channel that is Sankat Mocham for General Awareness. Guys, we have come up with a new series that is going to prove revolutionary in YouTube history in the education field, and that is Cut the Crap, the current affairs series. How this is different from other series or other videos or other lectures in current affairs, because here, as our graphic defines, ki Thunderbolt is what we are going to capture. We are not going to run after the raindrops, क्योंकि raindrops जो होती हैं they are abundant in nature. You cannot remember each aspect of each raindrop, and what other field or other people do in current affairs का field is कि they run after every tits and bits. No, that is not relevant, because देखिए how our brain works. If you actually read about the wiring of the brains, it is such कि हम लोग वो अपने ब्रेन में ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन कर लेते हैं. इससे क्या होता है कि जब एग्जामिनेशन आती है तो हम लोगों को नर्वसनेस आता है. सेकेंडली, हम लोग उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे अगर हमारा जो ब्रेन है वो लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, बिकॉज इफ यू रन आफ्टर एवरीथिंग यू कैन नॉट रिमेंबर इवन वन थिंग. तो इसीलिए उस चीज को काउंटर करने के लिए, या फिर अगर बात करा जाए आजकल करंट अफेयर्स को एक तरह से गॉसिप बना दिया है, एंड दैट इज अ वेरी प्रॉब्लमेटिक एस्पेक्ट. हर छोटी छोटी चीज पे हम लोगों को नहीं, वी हैव टू डू a topic, and that too in a very holistic manner. So that is what is expected from a individual who is studying for various examination, or even for persons who are curious to know about things, who are curious to debate about things. तो debating के लिए या फिर personality development के लिए you have to know about general awareness का aspects, and for that current understanding also is very important. तो इसीलिए तो run after the thunderbolt, catch the bijli aspect, catch the aspects of electricity, of fire, of something that is that catches your eye, right? Which catches the examiner's eye, which catches the world's eye, and not the every raindrop aspect. Okay, that is what makes us fly above the sea, fly above the skies, fly above the horizon. So these are the things that are very important. So again, you must have got the idea कि हम लोग किस तरह से इस series को handle करने वाले. So it is about cutting the crap, the gossiping, no gossiping, just the straightforward understanding of things with critical analysis of those aspects. So yes, तो अगर हम लोग देखें तो आज हम जो न्यूज कवर करने वाले हैं दैट इज रुद्रगिरी हिल्लॉक रॉक कट करेंट डिस्कवरी. तो अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन आवर हिस्ट्री. तो हिस्ट्री एंड करेंट, तो करेंट से कैसे लिंक करा जाएगा, तो ये करेंट की डिस्कवरी है. आपके सिलेबस में ये टॉपिक ऐड हो चुका होता है, आपके जनरल अवेयरनेस में ये टॉपिक ऐड हो चुका होता है. तो ये अगर मैं बात करूँ रुद्रगिरी हिल्लॉक की, तो यहाँ ये एक तरह से रॉक कट आर्किटेक्चर का अगर आप बात करते हैं जीएस में या किसी भी सब्जेक्ट में या किसी भी एस्पेक्ट में, हिस्ट्री में या आर्कियोलॉजी में, तो ये सब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है. इवन एंथ्रोपोलॉजी जैसे ऑप्शनल्स के लिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ये जो डिस्कवरी है, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट, what it has to do with culture. So remember, एक मैंने शॉर्ट डाला है, उसमें मैंने बात की है what UPSC expects. The first point is to connect everything with culture. This is what? This is a new discovery in culture. So cultural aspects को if you mention in your essays, if you mention in your interview, if you mention it in your personality debates, if you mention it in your answer, it gives you an additional edge. And that is what we have to do. So right to the topic itself, and yes, please like, share and subscribe our video, because that is what gives us encouragement. So रुद्रगिरी हिल्स, तो अगर मैं सबसे पहले इसकी बात करूं तो यहाँ पे मैं आपको पिक्चर्स पिक्टोरियल ये देखिए, ये हमारा रुद्रगिरी हिल्स में जो आंध्र प्रदेश के रीजन में हमारे को जो डिस्कवरी हुआ है. तो दिस इज द रॉक कट आर्किटेक्चर, अगेन द प्री हिस्टोरिक टाइम, द मिसोलिथिक पीरियड. तो ये पीरियड से लेकर उस पीरियड में रॉक कट में क्या हो रहा था, उसके आगे क्या हुआ है, क्या ओवरलैपिंग्स हैं, और उसके अलावा आसपास भी हम लोग क्या पढ़ते आए हैं रॉक कट के अराउंड, ये सब हम लोगों को बात करनी है. तो ये देखिए ये पिक्चर, एंड इट्स सच मतलब जस्ट रिमेंबर located in the Mesolithic age, and being able to draw things like this, it is a very important, it gives us the idea of man itself, idea of man.
ओके, द आइडिया ऑफ मैन, अगेन द आइडिया कि कल्चर जो है आ जा रहा है, या फिर जो सिर्फ ब्रिटिशर्स कहते थे, ये सब क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग्स है। जैसे ब्रिटिशर्स कहते थे कि जो मैन ये है, ये सिविलाइजेशन है, वो ब्रिटेन में आया है, और वो राइटिंग से मतलब हम उसको रिलेट करते थे, या फिर हम करते थे कि यूरोपियन जो है वो सिविलाइजेशन का पीक है। दीज थिंग्स काउंटर दीज डिस्कवरीज, कि इस तरह की जो डिस्कवरीज इस थ्योरी को काउंटर करती है। सिविलाइजेशन कल्चर हमेशा से रहा है, तो मैन एंड द आइडिया ऑफ सिविलाइजेशन हैज बीन कंटिन्यूअस, देयर इज नो ब्रेक, देयर इज नो आइडिया ऑफ सेइंग कि हाँ बाद में आया है। कल्चर हमेशा से एग्जिस्ट करता था, और इसका एक मेजर एविडेंस अगर हम देखें तो हमारा ये बन जाता है क्या, ये जो डिस्कवरी हुआ है। तो यस, सो आइडिया ऑफ मैन एंड कल्चर की भी हमने यहाँ पे बात कर दी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ की माइन्यूट इंफॉर्मेशन, ये देखिए एक और पिक्चर मैंने यहाँ पे यूज की है, लुक एट द ब्यूटी, लुक एट द ब्यूटी, ठीक है। तो क्या ओवरलैपिंग्स हैं, अगेन इधर यहाँ पे हम लोग क्या क्या बात करने वाले हैं, तो रामायण की भी हम लोग बात करेंगे कि रामायण का भी पिक्टोरियल डिपिक्शन हमको इन पेंटिंग्स में, इसके में ये जो आर्काइव्स है हमारे, इसमें हमें दिखे हैं। तो यस, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो रुद्रगिरी हिलॉक, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सीधा सीधा, थोड़ा सा मैं स्क्रीन से छोटी हो जाती हूँ। यस, नाउ दिस इज परफेक्ट। तो रुद्रगिरी हिलॉक, रुद्रगिरी हिलॉक, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले कहाँ, ये अगर ये एरिया की अगर मैं बात करूँ तो कौन सी स्टेट में आता है, तो ये आता है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। पहला पॉइंट तो यहीं पे क्लियर हो जाता है हमारा कि ये डिस्कवरी कहाँ की है, तो ये है आंध्र प्रदेश की, और ये एक रिमार्केबल आर्कियोलॉजिकल इवेंट है। ये एक रिमार्केबल archaeological, again the archaeological sciences, तो archaeological इवेंट, इसको मैं इवेंट की नाम दे रही हूँ, समझ रहे हैं। इवेंट एक जो बहुत मेजर चीज होती है उसको हम इवेंट कहते हैं, तो इसको भी मैं इवेंट कह रही हूँ। तो अगेन यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसमें है क्या क्या, तो एक तरह से इसमें प्री हिस्टोरिक हमारा रॉक पेंटिंग हमें यहाँ पे दिखता है, प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग, ठीक है। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड की हमको यहाँ पे, प्री हिस्टोरिक समझ रहे हैं कितना पुराना हो गया है, ठीक है। हिस्ट्री, जब हमारा हिस्ट्री से भी पहले, हमारा राइटिंग से भी पहले हमारे को प्री हिस्टोरिक पीरियड दिखता है, और वहां पर हमें इन लोगों को ये डिस्कवरी, हमको ये पेंटिंग हमें यहाँ पे मिलती है, और ये डिस्कवर होता है अगेन ट्रेस बैक टू मेसोलिथिक पीरियड, ठीक है। और इसके साथ साथ हमें काकतीय डायनेस्टी, इसी पे ही अगेन काकतीय डायनेस्टी वही रीजन पड़ रहा है, तो यहाँ पे हमें काकतीय डायनेस्टी की भी पेंटिंग्स हमें दिखते हैं, ठीक है। इसी के ऊपर अगेन ऐसा नहीं है दीवार होती है, दीवार पे बहुत सारी पेंटिंग्स हो सकती है, एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, तो दैट इज अगेन तो मेसोलिथिक एंड काकतीय डायनेस्टी, यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट होता है। अब इस काकतीय डायनेस्टी के बारे में भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि न्यूज में आया है। इसके बारे में अगेन हम लोग अपनी हिस्ट्री सीरीज में, आर्ट एंड कल्चर सीरीज में हम लोग स्पेशली इनका डिस्कस करेंगे, तो दैट इज इन फ्यूचर लेक्चर्स। तो प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग, मेसोलिथिक पीरियड, काकतीय डायनेस्टी, एंड सबसे पहले बात अगर मैं बात करूं तो ये जो शेल्टर्स हैं, ये जो हमारा रॉक कट है, इसकी बात करूं तो ये जो मेसोलिथिक एज में, तो ये अप्रोक्सीमेटली कौन सी एग्जैक्ट डेट अगर मैं कहूं तो क्या पड़ती है, तो अगेन 5000 बीसी में हमको यहाँ पे दिखता है, तो 5000 बीसी में हमको ये दिखता है। तो मेसोलिथिक पीरियड, अगेन ये भी आइडिया हमारा क्लियर हो गया। तो ये जो नेचुरल केव्स, दीज आर द नेचुरल केव्स, ठीक है, उसी को ही यहाँ पर उन पे हमें पेंटिंग करी हुई हमें दिखती है। तो इट एक्चुअली टेल्स अ लॉट अबाउट द कल्चर इटसेल्फ, ठीक है, कि वहाँ पे मेसोलिथिक पीरियड में कैसे लोग होते थे। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो अगेन काकतीय डायनेस्टी के बारे में हम लोगों ने बात करी, तो अगेन 13th सेंचुरी का भी हमको ओवरलैप यहाँ पे दिखता है, 13th सेंचुरी के भी हमें यहाँ पे ड्राइंग्स दिखते हैं। तो अगेन तो दैट लेयरिंग ऑफ द थिंग्स इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, तो दिस क्लैरिटी यू हैव टू हैव, ठीक है। तो यहाँ की अगर मैं पेंटिंग करूँ तो मल्टीपल कलर्स भी हमको दिखते हैं, अगेन मेसोलिथिक एज, मल्टीपल कलर्स, तो ये एक तरह का मिस्ट्री हो जाता है। तो अगेन कैसे हम, वही आइडिया है ना, द आइडिया ऑफ मैन, कल्चर, कलर्स,
तो ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो कलर भी अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा हमें पिगमेंट्स, डिफरेंट डिफरेंट पिगमेंट्स देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे जो एस्पेक्ट्स यहाँ पे पेंटिंग है तो उसमें अगेन रामायण का भी डिपिक्शन है, तो क्योंकि इतनी सारी लेयरिंग है तो उसमें रामायण का भी हमको डिपिक्शन मिलता है। तो अगेन रामायण, जैसे कि बाली, बाली का भी हमको यहाँ पे दिखता है। तो बाली एंड सुग्रीव का जो फाइटिंग हुआ है, ठीक है, सुग्रीव, तो ये एस्पेक्ट अगेन यू कैन अंडरस्टैंड रामायण इन टर्म्स ऑफ पावर डायनेमिक्स ऑल्सो, सो दैट इज ऑल्सो वॉट यू हैव टू डू। तो Ramayana and all these texts you don't have to just read from religious perspective, but also you can read from ethics perspective, from the perspective of the idea of the different sciences. Ramayana as a science and a study in history, a science and a study in philosophy, and a science and a study in ethical values, and a science and a study of international relations as well. Like Lord Ram, if you talk about Lord Ram, so कैसे उन्होंने अगेन विभीषण, विभीषण को जब वो उनसे मिलने जाते हैं लॉर्ड राम से, तो लॉर्ड राम एक्चुअली कॉल्स हिम लंकेश, the idea of Lankesh. If the elder brother, that is Ravana, Lankesh hai because he is the king, and if I call younger brother कि आइए महाराज लंकेश, तो इक्वल और अपने साथ बैठाना, अपने स्टेचर पे बैठाना, समझ रहे हैं? दिस, ये जो सिंबोलिज्म से ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, आपके दिमाग में यानी विभीषण के दिमाग में मैंने डाल दिया, अगर मैं बात करूं कि इस तरह सेम लेवल पे ला रहे हैं, तो मैंने विभीषण के दिमाग में डाल दिया क्या कि आप जो हैं वो क्यों नहीं आप रावण की पोजीशन को ले, क्यों नहीं आप इंटरनल रिवोल्ट करें, क्यों नहीं, क्यों, क्या आप सक्षम नहीं हैं कर इतने बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए? तो दैट आइडिया, ठीक है, टू प्लांट दो सीड्स ऑफ रिवोल्ट, these are very important. So again रामायण as an international dynamics का भी टेस्ट और टेक्स्ट। तो इसमें अगेन, तो यहाँ पे अगर हम रॉकेट में आए तो अगेन बाली या सुग्रीव को भी अगर दो पार्टीज की तरह देखा जाए तो कैसे उनमें अगेन आर्मी कहाँ से मिली, तो इन्हीं लोगों को तो वो करके, तो अगेन दैट वानर सेना, सो दैट एस्पेक्ट ऑल्सो यू हैव टू सी। तो रामायण का भी हमको यहाँ पे एस्पेक्ट मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर नेक्स्ट हम लोग बात करें तो मिडिल के फीचर्स, जिसमें अगेन हमें हनुमान जी का भी स्केच मिलता है हमको, तो ये सारे सिंबल्स हो गए। या फिर अगर मैं बात करूं तो फायर अल्टर, फायर ऑल्टर का भी हमको यहाँ पे सिंबल मिलता है, ठीक है। तो दैट एस्पेक्ट, या फिर हनुमान जी का डिपिक्शन हो गया, ठीक है। तो ये सारा भी हमको केव्स में मिल रहा है। तो अगेन ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, इसमें स्टेटमेंट डायरेक्ट बन के आ सकता है कभी भी। तो अर्ली रॉक पेंटिंग्स की अगर मैं बात करूं तो इंडिया जो एक सिविलाइजेशन है, ठीक है, इंडिया की मैं बात करूं अगर, तो इंडिया हैज बीन अ सिविलाइजेशन एंड वी ऑल नो दैट वेरी वेल, इंडिया एज सिविलाइजेशन। तो क्यों हम सिविलाइजेशन कहते हैं, तो वहां पे अगेन एस्पेक्ट आ जाता है किसका, तो एस्पेक्ट ऑफ द वेरियस कल्चरल एस्पेक्ट्स। तो हमारे यहाँ अर्ली रॉक पेंटिंग्स की भी हम लोग बात करेंगे, यहाँ से तो हम लोग ट्रेस करते हैं। तो अब आपके पास जब रॉक पेंटिंग्स का अगेन मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, तो अर्ली रॉक पेंटिंग्स की भी हम लोगों को बात करनी होगी। तो अगर हम देखें तो इंडिया में अर्ली रॉक पेंटिंग्स हम कहाँ से ट्रेस करें, तो फ्रॉम द पीरियड ऑफ अपर। अब मैं ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रही हूँ क्योंकि हम होलिस्टिकली कवर कर रहे हैं, तो इसको अगेन एड ऑन करने के लिए हमें अपर पेलियोलिथिक की भी बात करनी होगी। तो अपर पेलियोलिथिक, क्योंकि वी हैव टू कवर इट होलिस्टिकली, ये नहीं कि मैं सिर्फ यहाँ पे 5 मिनट का मैं बात कर दूं, नहीं, एक टॉपिक अगर उठाया है 10 टॉपिक मत पढ़ो, एक टॉपिक पढ़ो पर होलिस्टिकली पढ़ो। तो अपर पेलियोलिथिक एज, ठीक है, यहाँ पे अपर पेलियोलिथिक एज। अगेन हम लोगों ने एंथ्रोपोलॉजी में भी एक पेपर डाला है जिसमें अगेन आंसर राइटिंग किया है, हम लोगों ने अपर पेलियोलिथिक से ट्रेस करते हुए रॉक कट की बात किया गया है। तो अगेन भीमबेटका, आदमगढ़, पंचमरई, इन सब की हम लोगों ने बात किया है। और अब एक और ऐड हो गया है हमारा ये साइट आंध्र प्रदेश का रुद्रगिरी हिलॉक, तो दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर मैं बात करूं तो स्पेक्टैकुलर हमको कहाँ से, अगेन मैंने जिसका रेफरेंस दिया है दैट इज भीमबेटका, भीमबेटका, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो भीमबेटका, इसमें भी बहुत सारी हमको लेयर्स में बात करते हैं कि किस तरह से लेयर्स में हमको ड्राइंग्स एंड आर्किटेक्चर हमको मतलब दिखता है कि एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर, दूसरे के ऊपर तीसरा। तो ड्राइंग्स जो है उनके कल्चर के बारे में, हंटिंग एंड गैदरिंग के सीन्स के बारे में हमको वहाँ पे दिखता है,
ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो भीमबेटका की इन पर्टिकुलर, तो हमको एक सबसे पहले तो दिखता है एक अपर पैलोलिथिक पीरियड की आर्ट है। जैसे ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि भीमबेटका पे कितने पीरियड्स की ओवरलैपिंग हमें दिखती है, इसीलिए मैं ओवरलैपिंग्स की भी बात कर रही हूँ कि अभी जो डिस्कवरी हुई उसमें भी क्या क्या ओवरलैपिंग्स है। इसीलिए ये देख रहे हैं, ये एस्पेक्ट लोग कवर नहीं करते हैं, और ये एस्पेक्ट ही है जो यूपीएससी, तो यू हैव टू डिकोड यूपीएससी एंड देन कम अप विद अंडरस्टैंडिंग। तो भीमबेटका में अगर बात करूं इन पर्टिकुलर, तो भीमबेटका में सबसे पहले हमें दिखता है अपर पेलोलिथिक की, मेसोलिथिक की, ठीक है, मेसोलिथिक की एंड चालकोलिथिक, ठीक है, चालकोलिथिक एज की। तो तीन ओवरलैपिंग हमें दिखती है, एक अपर पेलोलिथिक, एक पेलोलिथिक, मेसोलिथिक एंड चालकोलिथिक। ठीक है। अब मेसोलिथिक पेंटिंग्स की इन पर्टिकुलर मैं बात करूं तो इस पीरियड में अगेन क्या पीरियड था, तो हम लोगों को पता है कि मेसोलिथिक पीरियड एज अ साइंस अगर मैं बात करूं मेसोलिथिक की, तो मेसोलिथिक में हम क्या बात करते हैं, तो अगेन इसे क्या कहते हैं, मिसो यानी मिडिल। ठीक है, एक होता है पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। तो मेसोलिथिक की अगर मैं बात करूं तो मिडिल, तो मिडिल में आ रहा है, तो अगेन हंटिंग गैदरिंग, यानी अभी पूरी सेडेंटरी लाइफ नहीं हुई तो हंटिंग गैदरिंग का हमको यहाँ पे पता होता है। तो ये भी आपको एस्पेक्ट लिखवा दिया गया है, हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी होती है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, एंड इफ आई एम सेइंग कि ये याद रखना है तो वो याद आपको रखना होगा, क्योंकि अगेन समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट मेसोलिथिक एज। तो इसीलिए यहाँ पर हमको अगर हम इसकी बात करें तो हमें बार्ब्ड स्पीयर्स हो गया, या फिर हमें पॉइंटेड स्टिक्स मिलती है, पॉइंटेड स्टिक्स, ठीक है, स्टिक्स मिलते हैं इस तरह के, या एरोज मिलते हैं हमें, क्योंकि शिकार कैसे कर रहे हैं तो एरोज एंड बोस से कर रहे हैं ना, तो ये सारी तरह की चीजें हमको यहाँ पे वो मिलती हैं। क्यों, क्योंकि एनिमल को पकड़ने के लिए शिकार का जो एलिमेंट है, क्योंकि मैंने कहा कि यहाँ पर अभी भी सेडेंटरी लाइफ नहीं हुआ था, क्योंकि न्यूलिथिक एज जो इसके बाद आएगी उसमें हमारा एग्रीकल्चर का डिस्कवरी होता है, उसके बाद हमारा डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स होता है, इसीलिए हंटिंग एंड गैदरिंग का सीन हमको यहाँ पर मिलता है। तो डेली लाइफ डिपिक्शंस भी हमको दिखती है कि कैसे मतलब कम्युनिटी डांसेस होती हैं, तो डेली लाइफ की अगर मैं बात करूं तो वो भी हमें दिखती है कि कैसे डांसेस और ये सब तरह की चीजें मिलती हैं। तो अगेन कल्चर एस्पेक्ट, द आइडिया ऑफ मैन जिसकी हम लोगों ने बात की थी, मैन जैसे हम कहते हैं कि पुराने जमाने में मैन जो था वो सिविलाइजेशन नहीं था, तो उसको काउंटर करते हुए आप ये पॉइंट ला सकते हैं। टेक्निक्स और कलर्स में भी अगर हम देखें तो बहुत सारे, जैसे व्हाइट एंड रेड कलर का बहुत ज्यादा यूज होता था, व्हाइट एंड रेड कलर, यही सब पॉइंटर्स है, इसी को ही आपको बनाना है। हम लोग आपको पीडीएफ भी दे सकते हैं और देंगे भी अपने टेलीग्राम चैनल पे, बट ये भी आपको अपने हैंड रिटन उसमें लिखते जाना चाहिए साथ साथ। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने ये बात कर ली। अब क्या है, इस पर्पस क्या है, तो अगेन एक तो एक हो जा सकता है कि मतलब कि हंटिंग एंड गैदरिंग तो कंपटीशन, तो अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए भी यहाँ पर हमको दिखता है। तो ये हम एक इंटरप्रिटेशन ये हो सकती है कि क्यों बनाते थे लोग। सेकंड अगेन दैट आइडिया ऑफ सेंस ऑफ कल्चर, रिलीजन, ये भी हमें रिलीजियस बिलीफ सिस्टम्स भी हमको इन पेंटिंग्स में दिखता है कि क्या रहा होगा उनका, मैन का साइकिक एस्पेक्ट क्या रहा था, क्या मतलब कि प्री हिस्टोरिक ग्लिम्स। तो हमें इन सब चीजों से क्या मिलता है, अ glimpse into prehistoric man's life, prehistoric man's life, man's life। ठीक है, कि उस अगर ये ना पेंटिंग्स होती तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होता बताना कि कैसा वहां पे रहता था। तो दैट इज देयर। एंड अगर मैं काकतीय डायनेस्टी की बात करूं, जैसे काकतीय डायनेस्टी का ओवरलैपिंग हम लोग बोलते हैं, तो काकतीय डायनेस्टी का इफ यू टॉक अबाउट, यहाँ पे मैं पूरा डिटेल में नहीं करूंगी, इसका डिटेल में क्या इनका आर्किटेक्चर वो सब मैं बाद में एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं डिस्कस करूंगी काफी डिटेल में, क्योंकि हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो काकतीय डायनेस्टी का अगर हल्का का ओवरव्यू दे दूं, तो काकतीय डायनेस्टी, ठीक है, तो काकतीय डायनेस्टी का सबसे पहला जो आपको पॉइंट पता होना चाहिए, तो वो डेक्कन रीजन में थे। ठीक है, तो डेक्कन रीजन में थे। ठीक है, तो इस रीजन में यहाँ पे हमको दिखते हैं, तो डेक्कन वाले रीजन में हमको कौन दिखते हैं, काकतीयाज। ठीक है, तो काकतीयाज हमारे इस वाले रीजन में हमें पूरा दिखते हैं, ऑन द ईस्टर्न डेक्कन, आप मत बोलिए ईस्टर्न डेक्कन। ठीक है, और सबसे पहला जो पीरियड है इनका, तो वो है 12th से 14th सेंचुरी। ठीक है, तो ब्रॉडली आपको 12th से 14th सेंचुरी याद रखना है। क्या इंडिविजुअल इवेंट्स क्या हो रहे थे वो सब हम लोग बाद में सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे, यहाँ पे हम करंट डिस्कस कर रहे हैं, तो इसलिए हम हल्का सा ओवरव्यू ले दे रहे हैं। तो यहाँ पे अगेन जो काकतीय लीनिएज है वो अगर हम ट्रेस करें तो दुर्जया से हम लोग करते हैं ट्रेस। दुर्जया द लेजेंडरी चीफ्टन,
तो चीफ्टेन से ये लोग आए थे, ठीक है। अब क्या डिटेल्स है इनका, अगेन ये सब हम लोगों को बाद में करना है। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट होता है आपको रीजन, क्योंकि रीजन की भी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। अगर आप आज का यूपीएससी का आंसर्स देखें, जिस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो क्वेश्चंस में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि रीजन क्या था, रीजन क्या था, या फिर कंटेम्प्रेरी कौन था। तो हम लोगों को वो सब चीजें पता होना चाहिए, ठीक है। तो अगेन काकतीय से पहले कौन थे, तो अगेन हल्का सा अगर मैं आइडिया दे दूं तो राष्ट्रकूटास, तो राष्ट्रकूटास थे, ठीक है। अगेन यहीं पे आपको समझ में आ गया कि इसी रीजन, अब जब उनसे पहले थे और मैं बात कर रही हूँ, पहले तो बहुत है, मैं राष्ट्रकूटास हूँ, क्योंकि इस रीजन में अगेन इसी रीजन में राष्ट्रकूटास थे, और राष्ट्रकूटास के वॉसल्स ये बनते थे, काकतीयास थे। तो वॉसल मतलब अगेन उनको सर्व करते थे राष्ट्रकूटास, और फिर उनको रिप्लेस कर दिया। तो अगेन द पावर डायनेमिक्स, ठीक है। अगेन इंटरनेशनल रिलेशन की सीरीज में भी हम लोग बात कर रहे हैं कि हाउ पावर डायनेमिक्स इज समथिंग दैट अंडरलाइंस एवरीथिंग, एंड दैट इज व्हाट लॉर्ड कृष्णा सेज। तो लॉर्ड कृष्णा, तो अगेन कैसे एक वॉसल जो है वो रिप्लेस कर देगा, तो दैट अगेन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो राष्ट्रकूटास थे, ठीक है। अब राष्ट्रकूटास कौन से थे, तो अगेन 6 to 10 सेंचुरी के आसपास राष्ट्रकूटास थे। ब्रॉड, मैं ब्रॉड बात कर रही हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि एक दिन में सब चेंजेस आ जाते हैं, ऐसे ब्रॉडली अगर मैं बात करूँ तो 6 to 10 हम मेजरली मानते हैं राष्ट्रकूटास का। तो यहाँ पर अगेन कंसोलिडेशन फिर काकतीयस कैसे करते हैं, तो अब काकतीयस की ही बात करें तो तेलुगु तेलुगु लैंग्वेज का बहुत ज्यादा वो होता है। तो अगेन लैंग्वेज एस्पेक्ट भी हम लोग काकतीयस में डिस्कस करते हैं। फिर अगर मैं बात करूं तो रुद्रमा देवी, वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगेन द फीमेल एस्पेक्ट, द विमेन एस्पेक्ट ऑफ हिस्ट्री, तो रुद्रमा देवी की हम लोग बात करेंगे, ठीक है, इसी लेक्चर में ही कर लेते हैं। तो रुद्रमा देवी अ रिमार्केबल female figure who actually becomes a very important part of India's history। तो इंडियन हिस्ट्री में अगर आपको बात करना आए कि विमेन को ट्रेस करिए, तो अगेन यू हैव टू टॉक अबाउट दीज विमेन, ओके। द किंगडम, दोज एस्पेक्ट दैट इज देयर। सो कैसे ये जो थे रुद्रमा देवी थी, इन्होंने यादव डायनेस्टी जब अटैक कर रही थी तो उससे बचाया, तो अटैक्स को कैसे इवेट किया। विमेन का पावर, अगेन इफ यू टॉक अबाउट फेमिनिज्म, अगर करंट की बात करूँ तो फेमिनिज्म, ठीक है, फेमिनिज्म से हम लोग यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं। तो रुद्रमा देवी कैसे वो करती हैं, काउंटर करती हैं, तो ये सब चीजें होती हैं। और आगे जाके ये अगेन शी मैरीज एन ईस्टर्न चालुक्य प्रिंस, तो मैरीज एन ईस्टर्न, तो अगेन चालुक्य में भी ब्रांचेस होती, तो मैरीज एन ईस्टर्न चालुक्य किंग, ठीक है, जिसका नाम होता है वीरभद्र, ठीक है, वीरभद्र, एंड लेटर हैंडेड ओवर द थ्रोन टू द ग्रैंडसन, ठीक है, अपने ग्रैंडसन को फिर ये थ्रोन दे देती हैं। तो ये सब एस्पेक्ट्स भी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों को देखते हैं कि डिक्लाइन शुरू हो जाता है काकतीय डायनेस्टी का। तो these are the things that we have talked about। So here we have actually given you a very गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पीरियड इटसेल्फ। तो पहले हम लोगों ने मेसोलिथिक की बात करी, क्यों, क्योंकि ये जो हमारा डिस्कवरी है दैट ट्रेसेस बैक टू मेसोलिथिक पीरियड। एंड यहाँ पर हम लोगों को ओवरलैपिंग समय देखते हैं किसकी, काकतीय डायनेस्टी, जो कि किस पीरियड में आई थी, तो 12 से 14 पीरियड में। अगेन द डेक्कन रीजन, ईस्टर्न डेक्कन हम लोग बात करते हैं, तेलुगु लैंग्वेज, एंड देन वी आल्सो टॉक्ड अबाउट रुद्रमा देवी, ओके। सो दीज आर द थिंग्स दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड तो हिस्ट्री के भी हम लोगों ने यहाँ पे फैक्ट्स क्लियर कर लिए हैं, जो एक तरह से हिस्ट्री में एक तरह का बबल बना रहता है कि क्या हुआ था याद नहीं आता है। तो इस तरह से करंट को लिंक करते हुए हिस्ट्री से भी इन्होंने लिंक कर दिया है, एंड इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगेन राइट टू द पेंटिंग इटसेल्फ हम लोग ये बात करेंगे किसकी, तो ये रुद्रगिरी हिल्स की। तो दैट इज देयर, तो दीज हिलॉक, सो दीज पेंटिंग्स अगेन मेंशन करना ही होगा, ऐसे आ जाए तो मेंशन करना होगा। सो दिस इज हाउ वी हैव कवर्ड द एंटायर टॉपिक इन अ वेरी lucid and easy way। Don't take burden, don't overload yourself with information, this is enough for examination, and I am saying that in a very straightforward term कि this much is enough for this topic, okay। So yes, please like, share and subscribe, and welcome to our whole project of education revolution that we are talking about। This is the education revolution that we are talking about, and we welcome you to this series। This is how we are going to proceed। आप हमारे YouTube के और भी अगर videos देखेंगे, you will get an idea of what we are actually trying to do, okay। So please like, share and subscribe, thank you।